अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 8 वाइब्रेटरी मोशन पर लेक्चर दूंगा। तो सबसे पहले हम वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, द बॉडी विच मूव्स टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन is called vibratory motion, or other name is oscillatory motion. To means आगे, फ्रो मीन्स पीछे, यानी आगे पीछे जो मुसलसल मूव कर रही है। जस्ट एग्जाम्पल लाइक मोशन लाइक अ स्विंग, मोशन ऑफ अ पेंडुलम और एटॉमिक वाइब्रेशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब हमने क्या करना है, इस वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेशन के दरमियान जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, विच हाउ वी कैलकुलेट फोर्स एप्लीकेशन ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड हाउ वी कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एक्सेलरेशन and other quantities will be calculated by Hooke's law or motion under elastic restoring force of a spring. Here the force on vibrating body is directly proportional to the displacement produced by the force on the spring attached body. Here is a spring attached body. We apply the force which will be produced displacement in the body, and this force which is applied on a vibrating body is equal to the product of a negative sign, a constant, which constant, system constant on which we are going to do the work, and the displacement produced by the force on the body. This is called Hooke's law. ये हुक्स लॉ एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हुक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। तो अब हमारे पास सपोज करते हैं, लेट वी हैव अ स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम इन विच अ मास अटैच विद अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। In first figure, we observe that the body of M is at the mean position, which is its actual position on which it is in rest. By applying a force F on the mass has displaced up to some displacement that is shown by the x, displacement x, then body will acquire another position that is called extreme position. This position is also called first extreme position because first time it has displaced from its mean position. On releasing this body from the second position, or we remove our applied force, then elastic force of spring will come in action and wants to take the body at the same position, that is the mean position. So this mass under the action of elastic force will start its motion slowly and gradually its velocity increases, that is called acceleration. The direction of acceleration here is from extreme position to the mean position. So slowly and gradually this mass will move towards its mean position. The elastic force action will from second position to the first position, that is the mean position. At this position elastic force will be zero, that is the acceleration will be zero, but body has a force that is called inertial force because the body is in motion. We have not stopped the body at here, so here acceleration will be zero, but due to motion body has maximum velocity at the mean position during the vibration. So body will not stop at the first position, so body will move from first to opposite position of the second and create another extreme position, that is called second extreme position, which is created due to the inertial force on the mass M. So here another again some displacement will be produced which will be equal to the first displacement which is produced by the first extreme position by the applying force. Here another extreme position will be created due to inertial force. Now
again elastic force will be in action and takes the body from third position to again first position, that is the mean position, and produce same phenomena just like from second to first, that is the due to elastic force the mass will move slowly and gradually towards the first position and there will be acceleration produced. Look at here, there is an acceleration towards the mean position, first position. At reaching to the first position, the acceleration will be 0 and again velocity will be maximum. So body will not stop at here and it will move further ahead due to inertial force. If this system is present in a vacuum, then inertial force and elastic force will come in action and reaction and will move forever till unless some external force will not act on it. अब स्टूडेंट हम जरा इसको अपनी आम फैम लैंग्वेज में समझते हैं कि ये हमारे पास मास है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें हमने इस मास पर F फोर्स अप्लाई की। जब F फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग के अगेंस्ट होगी, चाहे हम इसको इसके स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं या टूवर्ड्स लेके जाएं, दोनों केसेस में द बॉडी हैज डिस्प्लेस अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। सो एक और पोजीशन क्रिएट होगी जिसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। वहां पर जैसे ही हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, मास पर इलास्टिक फोर्स एक्शन करेगी और उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट कराती हुई मीन पोजीशन पर लाएगी। अब इलास्टिक फोर्स चाहती है कि सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पे लाना, तो स्लोली ग्रेजुअली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो बढ़ती जाएगी। जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंचेगी तो क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि इलास्टिक फोर्स यहां तक खत्म हो गई, तो एक्सेलरेशन खत्म हो गई मगर बॉडी रुकी नहीं, इसलिए यहां पर होगी मीन पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है यानी बॉडी मोशन में है, तो बॉडी के पास मोशन की वजह से कहलाएगी इनर्शियल फोर्स। वो इनर्शियल फोर्स बॉडी को मजीद आगे की तरफ लेकर जाएगी, तो इस तरह फिर दोबारा इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो गया। अब एक और पोजीशन दोबारा क्रिएट हो गई, वो कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम सेकंड पोजीशन भी कह सकते हैं, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास फिर दोबारा इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर दिया इनर्शियल फोर्स ने। अब क्या होगा, जैसे ये रुकेगी फिर दोबारा इलास्टिक फोर्स किस में आएगी, एक्शन में आएगी, बॉडी को सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन थर्ड पोजीशन से दोबारा फर्स्ट पोजीशन मीन पोजीशन पर लाएगी, जिस तरह सेकंड से फर्स्ट पे लेके आई। तो स्लोली ग्रेजुअली बॉडी क्या मास क्या करेगा, टूवर्ड्स मूव करेगा फर्स्ट पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वही एक्सेलरेशन फर्स्ट पोजीशन पे जाकर सिफर हो जाएगी। उसके बाद इनर्शियल फोर्स फिर इसको आगे लेके जाएगी। अगर ये सिस्टम एक वैक्यूम में हो तो ये जो है एक्शन यानी इनर्शियल फोर्स और इलास्टिक फोर्स एक्शन रिएक्शन करता हुआ हमेशा चलता रहेगा जब तक कि हम इस पर अपनी अपोजिट कोई फोर्स अप्लाई ना करें इसको रोकने के लिए। अब यहाँ आपको एक चौथी एक और तस्वीर नजर आ रही है जिसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है। व्हाट दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इफ वी हैव अप्लाइड फोर्स अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग। What elastic limit? Elastic limit is that limit if we applied force further ahead of elastic limit, then the system will destroy. Spring will be in a wire. Then the displacement produced due to maximum force up to elastic limit is called maximum displacement. यानी इससे मजीद अगर हम आगे लेकर जाएंगे तो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन को देखते हैं कि हमने जब फोर्स अप्लाई की थी तो सेकंड पोजीशन पर हमने इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट वर्क अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। देन एट फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी PE विल बी क्रिएटेड। जब पोटेंशियल एनर्जी कब क्रिएट होती है, जब हम किसी फील्ड के या फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाएं तो बॉडी में वो वर्क स्टोर हो जाता है एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई,
वो क्या करेगी, इसको मूव कराएगी। जब हम इलास्टिक फोर्स की वजह से जब वो मूव करता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा, यानी जैसे ही सेकंड पोजीशन पर यानी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना शुरू करेगा तो मोशन में आ गया। तो मोशन में आने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही मूव करता हुआ फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, यानी जैसे स्टार्ट किया काइनेटिक एनर्जी तो शुरू हो गई। अब हो क्या रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी स्लोली एंड ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। At the first position, here is written velocity maximum. Then, where velocity maximum, kinetic energy will also maximum. Ke maximum. अब जैसे ही ये मास इनर्शियल फोर्स की वजह से, ड्यू टू इनर्शियल फोर्स, दिस मास मूव फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन. नाउ व्हाट हैपन, द वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड पोजीशन इंक्रीजेस up to second extreme position, that is the third position. Again potential energy created because the inertial force has done work against elastic force. So here is energy conservation, that from the extreme positions to the mean position, the potential energy converted into kinetic energy, and from first position to second and third, that extreme positions, this kinetic energy going to convert in potential energy. Now we solve this equation by F is the applied force, X is the displacement. So we have written in Hooke's law, the force applied directly proportional to the displacement produced. So F proportional to X. By removing proportional, we must have to put a constant. So K is a constant, minus sign we will put due to F against spring elastic force. यानी हम जो फोर्स अप्लाई की है वो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट है, या फिर यूं लिख सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक जिधर फोर्स अप्लाई की जाती बॉडी उधर जाती है। बॉडी तो गई, मगर जैसे ही हमने छोड़ा, मास मूव अगेंस्ट द एफ, मास मूव किया अगेंस्ट एफ की तरफ मास मूव किया। तो स्टूडेंट माइनस साइन क्यों लगा, दो वजूहात की वजह हो सकती है कि हमने जो फोर्स अप्लाई की वो सिस्टम की फोर्स के अगेंस्ट थी। दूसरा ये कि जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करके बॉडी को छोड़ेंगे तो मास फोर्स की डायरेक्शन की तरफ जाने के बजाय उल्टा मूव हुआ। जैसे कि आप देखें यहां तक हमने फोर्स अप्लाई की तो ये मास आगे की तरफ जाने के बजाय क्या है, रिटर्न वापस हुआ। तो ड्यू टू अगेंस्ट रिटर्न वी पुट हियर माइनस साइन। And K is a spring constant, depends on the nature of spring. Nature of spring क्या, spring की hardness, softness, material of the spring. This will give you the K value, that is spring constant. Since here mass m and here is acceleration, so the product mass and acceleration is second law of motion, Newton's second law of motion. So F equals to ma. By comparing these two forces, we get ma equals to minus kx. So we develop here equation of the acceleration of the mass in horizontal spring mass system, that is a equals to minus k upon m into x. This mass which is multiplying with acceleration will be divide the k value. So this is the equation of the acceleration of the mass. स्टॉप नहीं करना, रोकना। चलें, अब ये जो हमारी एक्सेलेरेशन ऑफ मास की इक्वेशन है इन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, a इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम एक्स, इसमें k अपॉन एम कांस्टेंट बन गया क्योंकि हमारे पास जो पहली इक्वेशन हुक्स लॉ थी उसमें k कांस्टेंट था, स्प्रिंग कांस्टेंट, और सेकंड इक्वेशन जो कि न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर मास कांस्टेंट। तो इसका ओवरऑल हमारे पास k अपॉन एम कांस्टेंट बन गया। अब k अपॉन एम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो a माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स हो गया। तो कांस्टेंट यहां से हटाया, a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बाय रिमूविंग द कांस्टेंट, दिस शोज टू थिंग्स। व्हाट टू थिंग्स? Acceleration of m is directly proportional to its displacement, that is a proportional to x. If there is a greater displacement, then acceleration will be larger. How it is larger? Because
at the greater displacement, the elastic force of spring will work as many times as the greater displacement, so acceleration will be greater. कि जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा देर तक इलास्टिक फोर्स काम करती रहेगी। फिर एक्सेलरेशन, सेकंड पॉइंट इज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दैट इज शोन बाय मैथमेटिकली ए प्रोपोर्शनल टू माइनस। तो स्टूडेंट, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम की जो 4 फिगर्स थी उसमें देखें कि एक्सेलरेशन हमेशा किधर प्रोड्यूस हो रही है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इस बात को हम कैसे शो करते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की रिलेशन बनती है ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। The vibrating body which obeys above 2 conditions. What above 2 condition? A proportional to x, A proportional to minus. These are the 2 conditions. And its time period is 1 second. और उसकी इस वाइब्रेशन का टाइम 1 सेकेंड हो। अब एक वाइब्रेशन क्या है, फर्स्ट मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से सेकेंड एक्सट्रीम और फिर मीन, या फिर अगर हम एक एक्सट्रीम से लें दूसरे एक्सट्रीम तक, फिर वापसी दूसरे एक्सट्रीम से पहले एक्सट्रीम तक। यूं कह लें कि एक वाइब्रेशन में बॉडी 2 बार मीन पोजीशन से गुजरेगी तो वो कहलाएगी एक वाइब्रेशन। अगर उस एक वाइब्रेशन का टाइम 1 सेकेंड है तब हम इसे बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन, just like harmonium strings vibration. If the time period of harmonic motion is 1 second, then it is called simple harmonic motion. If time period more than 1 second, 2, 3 or 4, that is called second harmonic motion or compound harmonic motion. Student, आज आपको मैं इस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इक्वेशन ड्राइव की थी एक्सेलरेशन ऑफ एम, वो सिंपल हार्मोनिक की एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी जो बराबर था a इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम एक्स। अब आपने उसकी फिगर जो हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम की 4 डिफरेंट फिगर्स बनाई थी, उन फिगर्स में आपने एक्सेलरेशन भी देखी, वेलोसिटी भी देखी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी देखी। अब सिर्फ हमने वहाँ एक्सेलरेशन ड्राइव की थी, तो बाकी क्वांटिटीज एसएचएम की ड्राइव करने के लिए हम सहारा लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो उसका क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। प्रूव दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम। यानी एक बॉडी है जो सर्किल में मूव कर रही है, उसका प्रोजेक्शन क्या करेगा, एसएचएम मूव कर रहा है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। फिर आल्सो ड्राइव वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, टोटल एनर्जी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। अब स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इसकी पूरी डेरिवेशन में जाएं तो 8-10 पेजेस की इसकी डेरिवेशन बनती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाय पार्ट्स पूछा जा सकता है कि प्रूव करें मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम, ये पार्ट, आल्सो ड्राइव द वेलोसिटी, और इस पार्ट के साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पूछा जा सकता है, या फिर ड्राइव द वेलोसिटी ऑफ एसएचएम एंड आल्सो ड्राइव द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। इस तरह बाय पार्ट्स में मिलाकर पूछा जा सकता है। मगर ये सवाल चूंकि एक ही लिंक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको पूरा यहाँ लिख दिया है और इसी लिंक से हम इसको ड्राइव करते हुए आगे चलेंगे। अब आंसर में इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो क्या बताया गया है कि लेट वी हैव अ body or a particle P having uniform circular motion, its projection Q, अब projection को हम क्या कह सकते हैं, that is the shadow of the particle,
हुज मोशन अटैच्ड विद पार्टिकल, यानी जो Q की मोशन अटैच है पार्टिकल के साथ। अगर पार्टिकल मूव करेगा तो Q मूव करेगा, पार्टिकल जहां रुका Q वहीं रुक जाएगा। फिर विल मूव ऑन द डायमीटर AOB। अभी मैं आपको इसको फिगर के अंदर शो करके दिखाऊंगा कि किस तरह P और Q मूव करते हैं। फिलहाल यहां पर A एंड B, यानी Q किधर मूव करेगा, AOB डायमीटर का नाम है, जिसमें A और B आर एक्सट्रीम पोजिशंस। O is center of the circle, which is the mean position for the motion of Q. OA or OB is radius, which is shown by x naught, and the maximum displacement of Q, यानी x naught रेडियस को भी शो करेगा और वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि O सेंटर है विच इज द मीन पोजीशन, A और B एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वो कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब अगर Q मीन पोजीशन से इन A और B के अलावा किसी और पोजीशन पर है तो फिर उसको हम सिंपल पोजीशन बोलेंगे। तो वो जो मीन पोजीशन से उस पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट x से शो किया जाएगा, जो यहाँ लिखा गया है x इज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट फॉर Q फ्रॉम मीन पोजीशन O। अब ये चीजें आपको अभी फिगर में बताई जाएंगी। अब हम कह रहे हैं कि द P पार्टिकल मूव्स वन राउंड, देन अगर P पार्टिकल एक राउंड लगाता है तब क्या होगा, द प्रोजेक्शन Q विल एग्जीक्यूट वन वाइब्रेशन ऑन द डायमीटर AOB। अब आप देखिए हमारे पास फिगर है जिसमें सर्किल बना हुआ है, AOB डायमीटर है, इसमें सपोज क्या यहाँ ये P पार्टिकल है और इस वक्त जो इसका प्रोजेक्शन है इसी के अंदर जम है। जैसे ये मूव करना यहां पर पहुंचा, सपोज क्या P पार्टिकल मूव करता हो यहां पहुंचा, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर मूव करना शुरू करेगा इस डायमीटर पर, ये है Q। P यहां पहुंचा, Q यहां पहुंचा, P पार्टिकल यहां पर पहुंचा मूव करता हुआ तो Q यहां पर पहुंच गया, P पार्टिकल यहां पहुंचा, Q यहां पर पहुंच गया, तो P पार्टिकल यहां तो Q यहां पर फिर दोनों P और Q मिल गए। अब P पार्टिकल B पॉइंट से A की तरफ राउंड करना शुरू हुआ तो Q ने भी B से A की तरफ मूव करना शुरू किया ऑन द डायमीटर। ये P पार्टिकल, ये Q की पोजीशन इसके साथ, P पार्टिकल यहां पहुंचा, Q यहां पहुंच गया, P पार्टिकल यहां पहुंचा, Q यहां पहुंच गया, P पार्टिकल यहां आया, Q इधर आया, तो इस तरह P दोबारा यहां पर पहुंच गया, यानी P सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पर मूव कर रहा है और Q डायमीटर पर मूव करता हुआ AOB BOA जा रहा है। P एक राउंड लगाएगा तो Q AOB BOA पर एक राउंड लगाएगा, यानी एक वाइब्रेशन करेगा। जहां P चलना शुरू हुआ Q भी चलना शुरू हुआ, जहां P रुक गया Q भी वहां रुक गया। अब इसमें रुकना नहीं है, यानी P ने एक राउंड लगाना है तो Q ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करनी है। अब अगर P पार्टिकल एक सेकंड में एक राउंड लगा रहा है तो Q भी एक सेकंड में एक वाइब्रेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने मैथमेटिकली इस Q की जो वाइब्रेशन है उसको प्रूव करना है कि वो SHM है या नहीं। तो किसी भी बॉडी की मोशन को, वाइब्रेटिंग बॉडी की मोशन को SHM प्रूफ करने के लिए हमें उसकी एक्सिलरेशन की इक्वेशन ड्राइव करनी है। उस एक्सिलरेशन की इक्वेशन में तीन चीजें होनी चाहिए, यानी A इक्वल्स टू माइनस साइन और उस सिस्टम का कांस्टेंट, जैसे कि हमने पीछे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में कांस्टेंट था हमारा K/m, माइनस था K/m था और x। तो इसी तरह अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में Q प्रोजेक्शन की वाइब्रेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करने के लिए हमें Q की एक्सिलरेशन ड्राइव करनी है, जिसमें माइनस साइन आए, सिस्टम का कांस्टेंट आए और x सिंपल डिस्प्लेसमेंट आए। तो स्टूडेंट ये देखें, अब हमने एक सर्किल बनाया है, सर्किल में दोबारा हमने P पार्टिकल की यहां पर पोजीशन दिखाई है, Q की यहां पोजीशन। अब P पार्टिकल जो कि सर्किल में मूव कर रहा है, तो
जैसा कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि जो बॉडीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है उसके पास दो तरह की मोशन है, एक है लीनियर मोशन और एक है एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन ऑन द सर्कमफ्रेंस और एंगुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। अब पी पार्टिकल के पास जो दो तरह की एक्सेलेरेशन है, सेंट्रीपिटल भी है और इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है, और इन दोनों को मिलाकर जनरल एक्सेलेरेशन ए होती है। पर अब हमने क्या किया है, पी पार्टिकल की सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को फोकस किया है। तो पी पार्टिकल की सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो कि ऑन द रेडियस टूवर्ड सेंटर है, तो जब हम उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं बाय रिजॉल्विंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ पी पार्टिकल, वी गेट दैट the x component of centripetal acceleration of the p particle parallel with motion of q. It means acceleration of q will be provided by x component of centripetal acceleration. अब स्टूडेंट हम q की एक्सेलेरेशन ड्राइव करते हैं। जिस तरह हमने अभी सीखा कि पार्टिकल की सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो x कंपोनेंट है वो देगा हमें एक्सेलेरेशन ऑफ q। तो इसी ज्योमेट्री के जरिए एज शोन इन फिगर, बाय ज्योमेट्री वी गेट दैट x कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC ऑफ p gives us acceleration of q. That is, mathematically we can write that A of q, acceleration of q, equals to x component of centripetal acceleration AC. इसको और समराइज करते हैं कि A इक्वल्स टू ACX। तो x कंपोनेंट AC cos थीटा एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हैज ओपनिंग फार्मूला R ओमेगा स्क्वायर। Here radius equals to x naught, therefore AC equals to x naught omega square. So we put x naught omega square in the equation A equals to AC cos theta, that is A equals to x naught omega square cos theta. And here is also minus sign due to back motion of q from extreme position A or B. That is, q is linearly moving, that is moving A to O, O to B, that is a linear motion. So it must have to move forward, but it will not move forward due to P motion. It will come back B to O or A to O. So we put here minus sign. For now we remove the cos theta from here. How? This is a right angle triangle OPQ. Here in OPQ, right angle triangle, in which OP हमारा hypotenuse shown by x naught, OQ base shown by x, OQ base shown by x, OP shown by x naught, and PQ perpendicular. Since by the trigonometric ratio cos theta base upon hypotenuse, so base x, hypotenuse x naught, so cos theta equals to x upon x naught. We have an equation A equals to minus x naught omega square cos theta. At the place of cos theta, we put x upon x naught. X naught cancel, so we get A equals to minus omega square x. This is acceleration of q. Here, due to uniform circular motion, omega square is constant. In uniform circular motion, due to uniform is omega square. So in uniform circular motion, angular velocity is constant, that is omega square. So we put instead of omega square in the equation is a word constant. So A equals to minus constant into x. By removing constant, we get a proportional sign, A proportional to minus x. हमने क्या किया, हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है ज्योमेट्री में, इसमें x कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बराबर हो रहा है q की मोशन के, तो q की एक्सेलरेशन हमें मिलेगी x कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो a इक्वल्स टू ACX। अब x कंपोनेंट बनता है AC cos थीटा के जरिए, और AC को हम हटाएंगे R ओमेगा स्क्वायर के जरिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है।
और रेडियस यहाँ पे हमने एक्स नॉट से शो किया है, तो ए सी इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन की इक्वेशन जो हमारे पास थी ए सी कॉस थीटा, वो बन गई एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस साइन क्यों लगाया कि क्यू सीधी लाइन में मूव कर रहा है, जैसे ही वो बी पॉइंट पर पहुंचता है तो आगे जाने के बजाय बैक होता है, फिर मूव करता हुआ बी ओ ए पर ए से आगे जाने के बजाय फिर बैक होता है, इस वजह से माइनस साइन लग गया। फिर अब हमने यहां से cos थीटा को हटाना है बाय द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें OP हाइपोटेन्यूज x नॉट से शो हो रहा है, OQ बेस x से शो हो रहा है और PQ परपेंडिकुलर जो हमारे काम का नहीं, हमने कोई नाम नहीं दिया इसे। तो cos थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज x अपॉन x नॉट, तो cos थीटा की जगह हमने जो हमारी एक्सेलेरेशन की इक्वेशन थी माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा की जगह x अपॉन x नॉट रखा, x नॉट से x नॉट कैंसिल हो गया, अब हमारे पास आया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो a ऑफ q यानी ये आ गई हमारे पास एक्सेलेरेशन ऑफ q, प्रोजेक्शन की इक्वेशन बन गई। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, एक्सेलेरेशन तो हमने निकाल ली, तो इसको कैसे प्रूव करें कि SHM है, तो इसमें माइनस भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया और x, तो ओमेगा की जगह कांस्टेंट रखा, तो अब हमारी रिलेशन बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जिसमें क्या है कि q देयरफॉर q मोशन इज SHM बिकॉज दिस expression is divided in two parts, that is acceleration of q is directly proportional to its displacement a proportional to x, and acceleration of q is always directed towards mean position, यानी इस इक्वेशन या एक्सप्रेशन में जो a प्रोपोर्शनल टू माइनस है वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन शो कर रहा है, और जो a प्रोपोर्शनल टू x है वो ये शो कर रहा है कि जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज्यादा एक्सेलेरेशन होगी। तो इस तरह स्टूडेंट हमने प्रूफ कर लिया कि प्रोजेक्शन जो उस बॉडी का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रख रही है उसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, डायमीटर AOB पर SHM रखता है।